Good morning to all of you. Today we have to discuss about the soldier. As you know that it is very best poem by Rupert Brooke. As you know that Rupert Brooke, who has taken birth in 1887 and died in 1915. If you see his autobiography, then you find that he has taken birth in a well-to-do family and his education is already good. As you know that his father was a housemaster at Rugby School, where Rupert was educated before going to King's College, Cambridge. King's College, Cambridge में एडमिशन के पहले ये रगवे स्कूल में पढ़े, जहाँ के इनके पिता हाउस मास्टर थे. W. B. Yeats, the famous poet, described him as the handsome young man in England. W. B. Yeats ये बहुत ही ग्रेट पोएट थे और इन्होंने डिस्क्राइब किया है अबाउट रूपर्ट ब्रूक. क्या किया कि ही इज एज द हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के सबसे सुंदर आदमी में से रूपर्ट ब्रूक थे. ही एज्यूम्ड ए सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न्ड इनटू द मीथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर. और उसमें क्या दिखाया है कि ब्यूटीफुल, खूबसूरत, फॉलन, गिरे हुए, वॉरियर, लड़ाकू. चूंकि ये जो कविताएं लिखी गई है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर which has already happened in 1914 and ends in 1918. And you know that his life ends in 1915. It means that he has already lost his life in the battlefield. So that when he was in the battlefield, his thinking came. And you know that he died of septicemia on April 23rd, 1915 of the island of Lemans in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli या Gallipoli. Brooke is remembered as a war poet who inspired patriotism in the early phase of the First World War. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो अर्ली फेज था, जो प्रारंभिक स्टेज था, इन दैट पर्टिकुलर स्टेज ही हैज टोल्ड व्हाट इज पैट्रोटिज्म, यानी देशभक्ति क्या होती है, इसके विषय में इन्होंने दिखाया है. हिज रिपुटेशन चीफली रेस्ट्स ऑन 5 war sonnets of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized. Means that among all his sonnets, the soldier is one of the best sonnet, and through this sonnet he wanted to express his all patriotism which is felt by him in the battlefield. As you know that during First World War the world is divided into two groups, and in one side he was the person who is as a soldier, and what does he think, you have to see. और वो क्या सोचता है इस बैटल फील्ड में, ये देखना है. कहते हैं इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड. देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कैंसल्ड, ए डस्ट फ्रॉम इंग्लैंड बो shaped made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by sons of home. I should die, if I should die, कहते हैं कि यदि मुझे मरना पड़े, if I should die, think only of this me, तो सिर्फ
मेरे भी समय सोचो कि मैं क्या करूंगा। दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन लैंड, हो सकता है कि मैं इस विदेश की भूमि में कहीं भी मरूं, लेकिन दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, लेकिन वह जमीन सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाए। बिकॉज इन वन साइड यू फाइंड दैट इंग्लैंड वाज फाइटिंग एंड ऑन द अदर साइड देयर वेर द जर्मन्स and many other countries. So that he says that if I should have to die, I should die for England in any corner of the world. संसार के किसी भी कोने में रहे, हम इंग्लैंड के लिए मरे। There shall be in that rich earth a richer dust cancelled, cancelled में छुपना, और मैं उस भूमि के, उस डस्ट में, उस भूमि के धूल कण में जाके छुप जाऊं, मैं उसी मिट्टी में मिल जाऊं। अर्थात मेरी यदि मौत भी हो तो इंग्लैंड के लिए हो और मुझे इंग्लैंड की भूमि में दफना दिया जाए और वह भूमि इंग्लैंड के हैंड में रहे। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव एंड ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, और वह धूल, वह मिट्टी जो इंग्लैंड ने पैदा किया, यानी वह लैंड दैट इज ऑलरेडी इन द कैप्चर ऑफ इंग्लैंड शेप्ड, उस मिट्टी ने ही मुझे बनाया। द पोएट हैज expressed his view that the England has given birth and in that land he had already developed, he grew as a handsome man. एक खूबसूरत आदमी, एक अच्छे आदमी के रूप में इंग्लैंड में ही ये पला बढ़ा। शिफ्ट मेड अवेयर, इन्हें अवेयर हुआ, इन्हें ज्ञान हुई। गेव दिया वंस हर फ्लावर टू लव, और उस मिट्टी ने, उस जमीन ने, इंग्लैंड की उस जमीन ने इसे क्या दिया? फ्लावर दिया, फूल दिया। क्यों दिया फूल? टू लव, कि वो उस मिट्टी को, उस फूल को प्यार करे। ही हर वेज टू रोम, और उस मिट्टी ने, उस जमीन ने उसे रास्ता दिया जिससे कि रोम, ROM, रोम मीन्स भटकना, टहलना, इस मिट्टी में ये टहले भटके। ए बॉडीज ऑफ इंग्लैंड कहता है कि ये शरीर किसका है? इंग्लैंड का ही दिया हुआ है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और मैं इंग्लिश एयर में ही सांस लेती, यानी अंग्रेजों का जो कंट्री है इंग्लैंड जो है, वहीं ही मैं पला बढ़ा, वहीं मैंने सांस ग्रहण किया। वास्ट बाय द रिवर्स, और मेरे इंग्लैंड के पैरों को पखारा गया उस नदियों के द्वारा। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और वहाँ के सूरज की किरणों के द्वारा उस जमीन को प्रकाशित किया गया, वो आशीर्वादित था। In the next stanza, the poet has said, and think, this heart, all evil set away, a pulse in the eternal mind, no less, gives somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven. And this, और यह, दिस हार्ट, द पोएट है सेड, कवि कहते हैं कि ये जो हार्ट है, ये जो दिल है, ये जो बॉडी, इट इज ऑलरेडी शेप्ड बाय इंग्लिश लैंड, यानी इंग्लैंड। ऑल इविल सेड अवे एंड ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी इन द साइड ऑफ द पोएट, इट इज ऑलरेडी गॉन, सारी बुराइयां खत्म हो चुकी है। ए पल्स इन द इटरनल माइंड, और इटरनल माइंड आंतरिक दिमागों में क्या एक ऐसी नसें धड़क रही हैं। नो लेस, लगता है कुछ भी कवि ने, गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कि हमें वे सारी चीजें मेरे दिमाग में आ जाती हैं जो इंग्लैंड ने मुझे दिया है। हर साइट्स एंड साउंड्स, साइट्स मीन्स नज़ारा, दृष्टि, साउंड्स आवाज, इंग्लैंड की वो आवाज, वे नज़ारे, ड्रीम्स, वे स्वप्न, हैप्पी हर डे, वे सारे स्वप्नों को देखकर मैं खुश हो जाता हूँ कि इंग्लैंड मेरी जो मातृभूमि है वो इस तरह से मुझे शेप किया कि मैं उसी के लिए बन गया हूँ, इसलिए। एंड लाफ्टर, और मैं हंसता हूँ। लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और दोस्तों से भी मैंने सीखा है। एंड जेंटलनेस, उनकी भद्रताओं को भी मैंने सीखा है। इन हार्ट्स एट पीस, और मुझे इन सारी चीज़ों में मुझे तभी शांति मिलेगी अंडर एन इंग्लिश हेवन, जब मैं अंग्रेजी छत्र छाया में इंग्लैंड के इस भूमि के अंदर अपने आप को निछावर कर दूं। मीन्स थ्रू आउट द पोएम वी फाइंड दैट द पोएट हैज completely
sacrifice, completely want to sacrifice her body for this country. Either he has to die, if he should have to die, he must die under the sky of the English heaven, and his wish, if he is die anywhere of the world, this place must be under English. That is why he is ready to sacrifice body to make the country rich and prosperous, the country where he has taken birth. Thank you. Best of luck.